going to discuss three topics related to heavy menstrual bleeding. First is dysmenorrhea. As you all know, dysmenorrhea is not a disease; it is a symptoms. It is a symptom of various diseases. So we will discuss its differential diagnosis, its management. Then the other topic is premenstrual syndrome, and the third topic is the chronic pelvic pain. So first of all, we will start with dysmenorrhea. As you all know that dysmenorrhea means painful menstruation. So at the end of the lecture, we will be able to define and classify dysmenorrhea. What is the pathophysiology of dysmenorrhea? Investigations which are needed in the case of dysmenorrhea, and the management and treatment of dysmenorrhea according to the cause. So first of all, this picture represents the clinical condition and the various remedies which a woman use for dysmenorrhea, like painkillers, hot packs, then injectable painkillers. So it depends upon the intensity and the severity of this dysmenorrhea. If it is mild, it can be relieved by hot packs, hot bottles. If it is more severe, then we have to take oral painkillers, and if it is very severe, then it will be relieved by injections. So incidence of first of all we will classify primary dysmenorrhea. So it is classified into two subtypes. Number one is primary dysmenorrhea, and the number two is secondary dysmenorrhea. So what is primary dysmenorrhea? It accompanies menstruation with no other pelvic disorder or pathology. ठीक है जी, इसमें कोई pathology नहीं है, कोई underlying pelvic organ pathology नहीं है, and it is called primary dysmenorrhea. Now, what is secondary? Obviously, उसका opposite होगा. Painful menstruation is the result of underlying pelvic pathology. Incidence is common. Primary dysmenorrhea is very common in young girls, and incidence is 50 to 75%. Now, what is the cause of primary dysmenorrhea? Primary dysmenorrhea is the most common gynecological complaint and one of the leading cause of absenteeism. Obviously, primary dysmenorrhea, especially in young girls, they will be absent from the school, their colleges, their universities. So it is a common complaint of the young females and one of the leading cause of absenteeism. What is the underlying cause? Increased level of prostaglandin. Prostaglandin F2 alpha and 3 and prostaglandin E2, which stimulates uterine contraction, leading to vasoconstriction of the uterine arteries, causing uterine hypoxia. जब उसमें लेवल आपका इसका प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा का और E2 जो है, इनका दोनों पे स्मूथ मसल है यूट्रस के उन पे ही फैक्टरेट स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऑब्वियसली जो है आर्टरीज जो है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, विल कॉज यूट्राइन हाइपोक्सिया एंड दैट विल बी and it will cause pain. Second theory is that the cause is unknown. So this most common cause is the unbalance between the production of the prostaglandin to excessive production of prostaglandin alpha and E2. That's why the anti-prostaglandin drugs to relieve the pain. So it usually occurs 6 to 12 months after menarche. Usually begin few hours before or with menstruation. Pain is usually crampy, colicky, lower abdomen or suprapubic region. Some women also have associated symptoms like nausea, vomiting, diarrhea, and fatigue, lethargy. Some have also unique symptoms, and primary dysmenorrhea usually occur in a woman of less than 30 years. It is usually mostly common in unmarried women, in married women, which is mostly likely due to secondary causes, and the primary dysmenorrhea is usually present in the unmarried young woman. This is just a picture displaying the dysmenorrhea. But how will you evaluate the patient, and how will you differentiate that it is primary or it is secondary? You will ask when
young unmarried girl of 17 to 18 years or 15 years came to OPD with her mother with history of dysmenorrhea. What questions you will ask? You will ask about the day of the menstrual cycle when the pain is severe, and it is usually on one day before and first day of the menstrual cycle the pain is severe. When the blood flow starts, the pain will be relieved. And you will ask her about will she have to take any off from the his education or his workplace, and whether she has to take the painkillers. Now, what type of painkillers? If that is mild or moderate, then she will be most likely taking the oral pills. And if it is the pain is severe, then most likely she will be having injection. So these questions will be asked, and this will tell you the severity of dysmenorrhea. These simple questions will point toward the severity of the dysmenorrhea. So need of painkillers should be asked, which tablet she is taking and taking any time off from the work. Examination, it is a non-specific examination. Investigation is simple pelvic ultrasound to rule out any other pelvic pathology. This is the total management या workup of the patient. Patient को हम उसको नहीं कहेंगे. Any young woman presenting with dysmenorrhea, these questions you will ask, and the simple investigation you will advise is the pelvic ultrasound. No complicated or advanced investigation will be advised. Treatment. Mostly it will depend upon your proper counseling. If you explain the cause, underlying cause, and you will explain that it is a physiological thing, then most of the patient will be reassured, most of the girls and the mother will be reassured, and they will not ask for any specific medication. So lifestyle modification we will advise will be exercise and weight loss. You will can prescribe multivitamins, calcium, and the medication you can give is non-steroidal anti-inflammatory. Initially, you will give non-steroidal anti-inflammatory simply like mefenamic acid, constant 4, that is the generic name. You can advise any antispasmodic to relieve the spasm or a non-steroidal anti-inflammatory. But if there is a history of severe patient has a severe dysmenorrhea, then the second line of drugs can be advised, that is combined oral contraceptive pills, but they are not very little in very little cases. It is advised because it has other side effects, so you will avoid giving hormones. And you should counsel her, and most of the time the pain will be relieved by taking simple constant 4 or non-steroidal anti-inflammatory. If she is smoking, which is not common in our setup, it should be quitted, and you will also advise relaxation exercise like deep breathing exercise and other ways. And this is just the simple management of the primary dysmenorrhea. Now we will discuss the secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea is usually due to the underlying pathological cause, and you have to investigate it, and usually seen in the woman more than 30 years and woman of reproductive age. So required causes are number one, top of the list, endometriosis. Second is adenomyosis. Third is uterine fibroid. Fourth, pelvic inflammatory disease. Then pelvic adhesions due to repeated pelvic or abdominal surgeries. Another condition is pelvic congestion syndrome. Then is any endometrial polyp, intrauterine contraceptive device, cervical stenosis, and ovarian tumors. They all cause dysmenorrhea, and these are the acquired causes. Congenital causes usually are rudimentary uterine horn, imperforate hymen, and transverse vaginal septum. But they usually present earlier, not above 30 years. They present with earlier at the age of likewise you know because you have given the lectures about primary and immunology, secondary immunology. When there is imperfect hymen, it will present at the age of 15 and 16 years, or when there is a transvaginal septum. So it will also cause dysmenorrhea apart from uh, amenorrhea. But patient will not say it is dysmenorrhea. She will only present with the pelvic pain and amenorrhea in these cases like imperforate hymen and transvaginal septum. So now we will discuss one by one all these conditions briefly.
and we will discuss the treatment because individually these topics will also be discussed. We are just discussing it under the dysmenorrhea. So number one is the endometriosis. As you can see in the picture, what is endometriosis? Endometriosis is the presence of the endometrium, which is normally present in the uterine cavity lining. It is present outside the uterus anywhere. कहाँ कहाँ हो सकता है? आप देख रहे हैं ओवरी में है, ओवेरियन लिगामेंट में है, फैलियोपियन ट्यूब्स पे है, ठीक है जी, पेल्विक पे, पेल्विस में है, यूट्रस की साइड पे, इवन इन द वेजिना भी हो सकता है। मल्टीपल साइड्स पे जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो प्रेजेंट है। अब इस ये मसला क्या देगा? व्हेन द एंडोमेट्रियम इज शेड under the effect of estrogen and progesterone during the ovarian and the menstrual cycle, this जो ectopic tissue है, it will also proliferate and shed during the entire menstrual cycle. जब ये यहाँ पे ये menstrual cycle के दौरान ये जो टॉपिक टिश्यू है प्रोलिफरेट भी करेगा, उसके बाद इसमें सारी एंड्रोमेट्रियम साइकिल की चेंजेस आएंगी, तो इट विल लीड टू रिलीज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, different enzymes, and it will also lead to shedding of the endometrium in the pelvic cavity. तो ये जो सब प्रॉब्लम है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है जनरेट करेगा एंड इट विल लीड टू सीवियर pelvic पेन और डिस्मेनोरिया। pelvic पेन कंटिन्यूसली भी रह सकती है अपार्ट फ्रॉम द पीरियड्स, और वो वैसे डिस्मेनोरिया के साथ भी प्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट होता है उसमें पेन तो हर वक्त रहती है, लेकिन इट बिकम्स सीवियर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, और उस दौरान इतनी सीवियर पेन होती है ये पेशेंट को यूजली इंजेक्टेबल जो है पेन किलर्स को यूज करने पड़ते हैं। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेसिव क्यों है कि जैसे जैसे यहाँ पे एंडोमेट्रियम शेड होता जाएगा, इन्फ्लेमेशन होती जाएगी, यहाँ पे एडिशंस जो है वो मजीद बढ़ती जाएंगी, वो स्कारिंग होगी, फिर वो रीजनरेशन होगी, फिर एंडोमेट्रियम शेड करेगा और यहाँ पे पूरी जो है पेल्विस जो है उसमें मल्टीपल एडिशंस बन जाएंगी और सारी कंजेशन होगी, एनाटमी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, ब्लॉक हो सकती हैं, सीलिया डैमेज हो सकते हैं, उसके अलावा ओवेरियन डैमेज हो सकते हैं, ओवेरियन में फॉलिकल नहीं बनेगा, पेशेंट विल प्रेजेंट विद क्रॉनिक पेल्विक पेन, डिस्मेनोरिया, वेजिना में अगर एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट्स हैं तो पेशेंट विल हैव डिस्मेनोरिया, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट शी विल हैव इनफर्टिलिटी। ठीक है जी, तो एंडोमेट्रियोसिस जो है इट इज अ डिबिलिटेटिंग डिजीज। इसका जो है कोर्स काफ़ी लंबा होता है और एंड कब होती है? जब ओवेरियन एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ओवेरियन हार्मोन्स खत्म होंगे, एंडोमेट्रियम पे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और देन जो ये जो एक्टोपिक टिश्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है डीजनरेट करता जाएगा। ठीक है जी, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट ये है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजायर, एज एंड फर्टिलिटी। अगर तो पेशेंट यंग है तो यूजली हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, लाइक कंबाइंड और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डेनोजोल दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है जीएनएच एनालॉग्स। अगर ओवरीज में इतना ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस हो गया इट हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन मास, देन पेशेंट रिक्वायर्ड सर्जरी to remove this mass. उसके बाद अगर patient has presented infertility, तो she will be advised assisted conception, IVF or ICSI. Endometriosis जो है it can present with chronic pelvic pain, dysmenorrhea and dyspareunia and infertility. उसके बाद आ जाती हैं vaginal septum, that is anatomical cause। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अपर 1/3 और लोअर 2/3 के दरमियान एक सेप्टम प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जो मेनार्की पेशेंट जो है कोई भी गर्ल उसको मेनार्की स्टार्ट होगी तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है इट इज कलेक्टेड इन द upper part of the vagina, it will lead to hematocolpus and then it is backward pressure जो बढ़ेगा it will collect in the uterine cavity and it will be lead to hematomegaly, जिसकी वजह से जब यूट्रस डिस्टेंड होगी तो पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज द मोस्ट लाइकली जो है ये वाली जो कॉज है पैथोलॉजिकल कॉज फॉर डिस्मेनोरिया, इट विल प्रेजेंट इन 15 to 16 या एज एट द एज ऑफ मेनार्की। उसके बाद आ जाती है जी रूडिमेंट्री हॉर्ट, ये भी अर्ली प्रेजेंट करेगा
यंग पे होगा 15-16 ईयर्स में, 70 ईयर्स में, आफ्टर जो है जब 2-3 साल मेंस्ट्रुअल साल गुजर जाएंगे तो जो रुडिमेंट्री हॉर्न है, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसका आउटफ्लो ट्रैक कोई नहीं है, इसका सर्विक्स और वेजिना से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है जी, दोनों साइड से ये क्लोज है। इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम तो है और वो एंडोमेट्रियम जो है वो हार्मोन्स जो है उनको हार्मोन्स जो है एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट भी करेंगे, इफेक्ट भी होगा, ज़्यादा वो तो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट भी करेगा, उसमें सेक्रेटरी चेंजेस भी आएंगे, वो शेड भी करेगा। इट विल लीड टू द कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन दिस रुडिमेंट्री हॉर्न और फिर वहाँ पे पेशेंट को पेन डेवलप शुरू हो जाए। ये जो है हॉर्न अगर इस तरह अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस हो जाए, दैट इज नो कनेक्शन विद द वेजिना, और ब्लड फ्लो जो है उसको कोई ट्रैक अवेलेबल नहीं है आउटफ्लो के लिए, तो इट विल ऑल्सो लीड टू सीवियर डिस्मेनोरिया एंड इट शुड बी रिमूव्ड सर्जिकली बिकॉज इट्स अ नॉन कम्युनिकेटिंग हॉर्न। अगर डबल यूट्रस है विद कम्युनिकेशन विद द वेजिना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल जो है चल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिप। व्हाट इज पॉलिप? पॉलिप इज द proliferation of the endometrial lining, ठीक है जी। पॉलिप जो है डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकते हैं। पॉलिप आप देख सकते हैं, इट कैन बी एन एंडोमेट्रियल पॉलिप और इट कैन बी अ सर्वाइकल पॉलिप। ये जो पिक्चर जिसमें आपने देख ली, इसमें ये दोनों एंडोमेट्रियल पॉलिप हैं। इसमें क्यों पेन होती है? इसलिए कि यूट्रस में अगर कोई भी चीज़ है, अगर आईयूसीडी है, अगर ये कोई फाइब्राइड है, पॉलिप है, इट विल ट्राई टू एक्सपेल इट, ठीक है जी। इसकी वजह से यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पेशेंट विल हैव पेन और डिस्मेनोरिया। तो fibroid and uterine polyps are also one of the cause of dysmenorrhea. Then is the intrauterine contraceptive device. Same intrauterine contraceptive device, uterus will try to expel the foreign body in it. Secondly, because copper IUCD है, it will induce inflammatory reaction. प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगी, एंजाइम रिलीज होंगे, साइटोकाइन्स रिलीज होंगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ऑब्वियसली पेन होगी और पेशेंट विल हैव डिस्मेनोरिया और पेल्विक पेन। नाउ एडिनोमायोसिस, इसको आप कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की बहन है, लेकिन इसमें दोनों की पैथोलॉजी, दोनों की टियोलॉजी फ़र्क है और दोनों का जो एज ग्रुप है वो भी फ़र्क है, ठीक है जी। एडिनोमाइसिस क्या है? एडिनोमाइसिस ये है कि जो एंडोमेट्रियम टिश्यू है, एंडोमेट्रियोसिस में तो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द यूट्रस। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो आप देख सकते हैं रेडेड स्पॉट्स हैं, यूट्रस का स्पेसिमेन है, इट इज प्रेजेंट इन द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर, सीरोसा। जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड है, इट शुड बी प्रेजेंट इन द म्यूकोजा, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि दे आर प्रेजेंट इन द मस्कुलर लेयर। अब जो मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट है तो दे सिंपल वही एंडोमेट्रियोसिस वाली जो है पैथोलॉजी के, दे रिप्रोड्यूस, रीजनरेट, शेड, proliferate under the effect of the estrogen and progesterone during the entire menstrual cycle, and it will lead to dysmenorrhea and menorrhagia। दोनों सिम्टम्स होंगे। पेशेंट को यूट्रस का साइज इनलार्ज हो जाएगा, बट यूट्रस आप देख सकते हैं इट इज यूनिफॉर्मली इनलार्ज, इसमें कोई इरेगुलरिटी इस यूट्रस के जो है स्पेसिमेन में नहीं है, बट जो मस्कुलर लेयर है उसमें मल्टीपल रेड कलर के आपको एंडोमेट्रियल स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। इसमें आपको इन दोनों डिजीजेस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट एज ग्रुप्स के पेशेंट में होती हैं। एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस को अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो यूजली 20s से लेके 40 तक वुमेन में होता है और यूजली दीज पेशेंट्स आर हैव इनफर्टिलिटी या वन और टू चाइल्ड। लेकिन जो एडिनोमाइसिस है, दे आर सीन इन मल्टीपेरेस above the age of 40, 45, 50 years की वुमेन में ये होता है, दे आर यूजिंग मल्टीपेरस, पैरा 4, पैरा 5। इसका ट्रीटमेंट जो है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप देते हैं, आप सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, फिर इनफर्टिलिटी के लिए अलग ऑप्शन है। लेकिन इसमें एडिनोमाइसिस में इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है, इसमें दो ही प्रॉब्लम है, डिस्मेनोरिया एंड मेनोरेजिया। क्योंकि ये पेशेंट का जो एज ग्रुप है अबव 40 है, दे हैव कंप्लीटेड देयर फैमिलीज, इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जिकल, दैट इज
रिमूवल ऑफ द यूट्रस और हिस्टेक्टोमी। ठीक है जी, ये बेसिकली जो है एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस में मेन डिफरेंस है। उसके बाद आ जाते हैं हम, पिक्चर से आपको पता चल रहा है इरेगुलरली लार्ज यूट्रस है, फाइब्रस आपको नजर आ रहे हैं, एक इंटीरियर सरफेस पे, एक थोड़ा फंडल एरिया पे, फिर एक कॉर्नर पे नजर आ रहा है, फिर ये राइट साइड के ऊपर भी ट्यूब के नीचे भी एक बड़ा फाइब्रॉइड है। क्योंकि ज़्यादा यूट्रस लार्ज हो गई है, डिस्टॉर्ट हो गई है, इसमें मल्टीपल जो है वो ट्यूमर्स बन रहे हैं, बिकॉज व्हेन द यूट्रस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से पेशेंट को पेन भी होगी, दूसरा पेशेंट को डिस्मेनोरिया होगा क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो यूट्रस का इंक्रीज करता है। These are the fibroids. Now the tubo-ovarian abscess. This is secondary to pelvic inflammatory disease or pelvic inflammation. इसमें आप देख सकते हैं जो है राइट साइड पे ट्यूब जो है वो लार्ज हो गई है, इट इज हाइड्रोसल्फिंग्स, और लेफ्ट साइड की ट्यूब ओवी दे आर नॉर्मल। तो एनी जो इंफेक्शन है दे विल आल्सो लीड टू पेन। इस साइड में पेशेंट विल हैव अ फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड पेन ड्यूरिंग द पीरियड्स। जब यूट्रस ड्यूरिंग पेन हर वक्त पेशेंट को रहेगी, लेकिन इट विल एग्रीवेट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। सो कॉजेज आपने डिटेल में हमने डिस्कस कर ली है। Secondary amenorrhea occurs between the age of 30 and 45 years. Pain occurring with menstruation is usually indicative of pelvic disease. Premenstrual and menstrual dysmenorrhea is indicative of endometriosis. ठीक है जी, जो पेन स्टार्ट होगी एंडोमेट्रियोसिस में बिफोर पीरियड्स एंड इट विल एग्रीवेट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। जितना जितना डेज गुजरते जाएंगे पेन बढ़ती जाएगी। क्यों पेन बढ़ती जाएगी? इसलिए कि वो जो सारा रिएक्शन है पेल्विक कैविटी में बिकॉज ऑफ द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, स्कारिंग और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता जाएगा। पेन प्रीसीडिंग पीरियड्स एंड रिलीव बाय मेंस्ट्रुएशन इज मोर लाइकली सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। Non-cyclical pain is suggestive of non-gynecological pathology. अगर तो उससे कहते हैं पेन साइक्लिकल नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ उसका रिलेशन नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ड्यू टू non-gynecological causes. So you should also have assessment of bowel habits and urinary symptoms. Associated heavy periods may indicate gynae pathology. अगर तो heavy periods हैं, it can be due to polyp, it can be due to fibroid, or it can be due to एडिनोमाइसिस। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं इनमें ये दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें मेनोरेजिया भी होगा और डिस्मेनोरिया भी। ठीक है जी। एलिसिटिंग द पेशेंट कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन इज वाइटल फॉर ऑप्टिमल मैनेजमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द पेन मस्ट बी कैरिड आउट। पेन का भी आपने असेस कर लिया कितनी सीवियर पेन है। कई दफा पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो उसकी पैथोलॉजी से मैच नहीं कर रही होती। प्रॉपर असेसमेंट इज मस्ट। उसके बाद आ जाते हैं जी हिस्ट्री में। जिस तरह हिस्ट्री में मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होगा? द सेवेरिटी ऑफ द पेन वर्सन्स एज द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स एंड रीचेस इट्स पीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेंस। वही जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है इन द होल पेल्विस। पेन की जो सेवेरिटी बड़ी सीवियर होगी और वो इंक्रीज करती जाएगी जब तक पेशेंट कोई मेडिकेशन ना ले। एडिनोमाइसिस में क्या होगा? एडिनोमाइसिस में पेन होगी लेकिन नॉट एज सीवियर एज एंडोमेट्रियोसिस एंड पेशेंट विल आल्सो हैव मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया। डिफरेंशिएट आप पेशेंट की एज के ऊपर, पैरिटी पे और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली इन दोनों डिजीज में आप कर सकते हैं। पहले मैंने बताया कि वो 20, 30, 40s में होती है। एडिनोमाइसिस मोस्टली कॉमनली सीन इन अबव 45। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की जब मरीज है तो उसको 20-25 में सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे और वो 40 तक जाते जाते उसका डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो चुका होगा। लेकिन एडिनोमाइसिस की जो पेशेंट है वो डिजीज ये जो प्रोसेस है ये 40 के बाद शुरू होगा। वो 40 के बाद आपके पास पहली दफ़ा आएगी इस सिम्टम्स के साथ कि मुझे डिस्मेनोरिया। लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट है वो तो 25-30 में उसकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। इवन को 20 साल में भी स्टार्ट हो जाती है ये एंडोमेट्रियोसिस और वो प्रोग्रेसिव है, वो इंक्रीज करती जाएगी। उसमें इनफर्टिलिटी का भी इशू होगा। एडिनोमाइसिस में इनफर्टिलिटी का इशू नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसकी हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है?
Dysmenorrhea starts 2 to 3 days prior to menstruation and ceases off when the menstruation start. The menstrual flow start हो जाता है, यूजली पीआईडी की पेन रिलीव हो जाती है. इसके अलावा एसोसिएटेड क्वेश्चन जो पीआईडी में पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज कब से है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिजीज की हिस्ट्री तो नहीं है, वो यूजली आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द पीआईडी. देन कंजेनिटल एब्नॉर्मल, सो मैंने बता चुकी हूँ, यूजली प्रेजेंट एट अर्ली एज विद प्राइमरी एमेनोरिया. प्राइमरी एमेनोरिया में हम अल्ट्रासाउंड हमेशा इसलिए कराते हैं जब कोई भी आती है बच्ची अपनी माँ के साथ एक सुयर डिस्मेनोरिया है, तो एक तो हमें एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है जिसमें कोई कॉज ना हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड से मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम बेसिकली इन्हीं कंजेनिटल एनॉमलीज के लिए कराते हैं. और इसमें जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन है, इन सम केसेस यूरिन रिटेंशन एंड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, बिकॉज जो है वो उसमें जब वो यूट्रस का साइज बढ़ता रहता है, उसमें ब्लड कलेक्ट हो रहा है, तो इट विल गिव ब्लैडर इंटीरियर है, इट विल पुट प्रेशर ऑन द ब्लैडर. पेशेंट को यूरिन रिटेंशन के साथ पेशेंट आपके पास आ रही है, नेक ऑफ द ब्लैडर के ऊपर यूट्रस का प्रेशर होता है एंड शी विल प्रेजेंट विद यूरिन रिटेंशन, इनकम्प्लीट एम्पटिंग एंड यूरिन रिटेंशन. ट्रैक इन्फेक्शन जैसे पहले बताया था, हाइपर एडिनोवाइसिस में एसोसिएटेड सिम्टम्स इज ऑलवेज मेनोरेजिया. एज ग्रुप इज डिफरेंट. एडिनोमाइसिस अबव 45, फाइब्रोइड में यूजली अबव 45, लेकिन फाइब्रोइड के लिए कोई ऐसी एज की लिमिटेशन नहीं है, यंग एज है. PIT and endometriosis, patient usually have irregular menstrual cycle. Menstrual cycle irregular होगा लेकिन यूजली मेनोरेजिया नहीं होता. इसके अलावा PID में पेशेंट को डिस्चार्ज होगा, वजाइनल डिस्चार्ज की होगी. एंडोमेट्रियोसिस में पेन की सेवेरिटी बहुत ज़्यादा होगी एंड पेशेंट विल आल्सो हैव डिस्मेनोरिया. IUCD एंड PID में भी पेशेंट को कंप्लेन होगी डिस्मेनोरिया अलॉन्ग विद वजाइनल डिस्चार्ज. IUCD में वजाइनल डिस्चार्ज तब होगा if it has associated infection. Now examination पे आपने क्या क्या देखना है? Obviously examination will start from the general physical examination, then abdominal examination. Abdominal examination में आपने क्या क्या देखना है? Enlarged uterus. Uterus का size किस वजह से enlarge हो सकता है? अब आप जाहिर ये करेंगे तो आपको ये तो नहीं पता होगा कि ये यूट्रस है या ओवेरियन मैस है. सपोज अगर यूट्रस इलाज है तो क्यों होगी? फाइब्रोइड केस से इलाज हो सकती है, वो एडिनोमाइसिस में इलाज हो सकती है, वो हेमाटोमेट्रा हो सकता है. ठीक है, यंग लड़कियों में अगर कोई मैस है तो मोस्ट लाइकली हेमाटोमेट्रा है. उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद जो अगला स्टेप होगा स्क्रैपुलम एग्जामिनेशन. स्क्रैपुलम एग्जामिनेशन भी आप 2-3 जो है पॉइंट्स वो रूल आउट कर सकते हैं. अगर तो कोपियस डिस्चार्ज है कमिंग फ्रॉम द सर्वाइकल ऑस, इट इज PID. पॉलिप जो है अगर वो प्रोट्रूड करके आपको सर्विक्स से बाहर नजर आ रहा है तो आपको डायग्नोज हो जाएगा. IUC थ्रेड आपको नजर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगी कि ये कॉज है इसकी पेन की. और अगर ब्लू शेड्यूल आर प्रेजेंट इन द वेजिना दैट दे विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है जी, तो डायग्नोसिस आपका 4 बीमारियों का तो स्पेकुलर एग्जामिनेशन एस्टैब्लिश होगा. उसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज बायोमेनुअल एग्जामिनेशन. बायोमेनुअल एग्जामिनेशन पे भी आप 3 से 4 कंडीशंस को, ये जो चारों कंडीशंस हैं ये मेनोरेजिया भी करेंगी और डिस्मेनोरिया भी करेंगी, तो ये आपको इसमें आप डायग्नोज कर सकते हैं. अगर तो यूट्रस यूनिफॉर्मली इनलार्ज है जिसको हम बल्कि यूट्रस कहते हैं, ठीक है जी, वो उसका साइज 12 वीक्स तक है, मैक्सिमम 12 वीक्स तक है, तो इट विल बी मोस्ट लाइकली एडिनोमाइसिस. और अगर यूट्रस जो है वो इरेगुलरली इनलार्ज है, फर्म है, तो इट मोस्ट लाइकली इट विल बी फाइब्रॉइड. और अगर यूट्रस जो है वो फिक्स्ड, टेंडर, रिट्रोवर्टेड है, रिट्रोवर्टेड नॉर्मल पोजीशन जो है यूट्रस की वो एंटीवर्टेड है, एंटी फ्लेक्सिबल. अगर यूट्रस इज मोस्ट लाइकली मोस्टली फेल्ट इन द पोस्टीरियर पाउच, एंटीरियर भी वो फेल्ट नहीं हो रही, और जो डगलस में बायोमेनुअल एग्जामिनेशन फील हो रही है, इट इज मोस्ट लाइकली यूट्रोवर्टेड यूट्रस. किन किन वजह से हो सकती है? जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, स्कारिंग होगी, तो यूट्रस जाके पीछे फिक्स हो जाएगी एंड इट कैन बी सीन इन PID एंडोमेट्रियोसिस. इसमें यूट्राइन टेंडरनेस भी होगी और बाइलैटरल एडिनेक्सल टेंडरनेस भी होगी, दोनों केसेस में, PID में, एंडोमेट्रियोसिस में. आप इस एग्जामिनेशन अगर प्रॉपर किया जाए तो इन सारी कंडीशंस को रूल आउट किया जा सकता है, या आप उनको पिक कर सकते हैं. अच्छा जी, अब आ जाती है इन्वेस्टिगेशंस.
अपार्ट फ्रॉम द रूटीन जो हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, उसमें सबसे पहले जो सबसे नॉन इन्वेसिव है और चीप भी है, दैट इज pelvic ultrasonography. It can be either be abdominal or it can be pelvic ultrasound, or it can be transvaginal. It will simply rule out any pelvic pathology. या अगर रूल आउट सकती है, फाइब्रोइड नजर आ जाएगा, एडिनोमाइसिस यूट्रस इनलार्ज है, वुमन 40 व्हेन अबव की है, एडिनोमाइसिस पता चल जाएगा। अगर कोई कंजेनिटल एनॉमली है, हेमाटोमेट्रा है, हेमाटोकॉल्पस है, वो ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये पेशेंट आपको नजर आ जाएंगी अल्ट्रासाउंड। उसके बाद जो अगली है इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो है, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन 3 केसेस: PID, एंडोमेट्रोसिस एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्योंकि एंडोमेट्रोसिस जो है, अभी तक हमने उसको एल्विस अल्ट्रासोनोग्राफी है, वो एंडोमेट्रोसिस को पिक नहीं कर सकती। हम सिर्फ सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर कि पेशेंट को डिस्मेनोरिया है, प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ इंक्रीज करता जाता है, उसको डिस्पेरोनिया की कंप्लेंट है, इनफर्टिलिटी है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो हम कह देंगे कि इट इज एंडोमेट्रोसिस। लेकिन इसका 100% जो कंफर्मेशन है वो किस पे होगा? लेप्रोस्कोपी पे। इसी तरह पीआईटी में वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री है, आपको उस पर स्पेकुलम पे वजाइनल डिस्चार्ज नजर आ रहा है, तो आप कह तो देंगे इस पीआईडी, लेकिन 100% डायग्नोसिस एस्टैब्लिश्ड बाय लेप्रोस्कोपी। ठीक है जी। उसके बाद एक एडिशनल जो इन्वेस्टिगेशन, हिस्टोस्कोपी फॉर इंट्रायूट्राइन पैथोलॉजी। इंट्रायूट्राइन अगर कोई पैथोलॉजी है, सेप्टम है, दैट इज कॉजिंग पेन, या सम म्यूकस फाइब्रोइड है, या एंडोमेट्रियल पॉलिप है, तो इट कैन बी डायग्नोज ऑन हिस्टेरोस्कोपी। ठीक है जी। और उसके बाद इन्फेक्शन स्क्रीनिंग तो ऑब्वियसली है ही, उसको जब पहले एग्जामिनेशन करते हैं, अगर जनरल डिस्चार्ज है तो सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम द posterior fornix, from the endocervix, and if needed from the urethra and rectal threads. ठीक है जी, these are the investigations. Now the treatment. General treatment, specific treatment. General treatment include lifestyle modification that include exercise, multivitamins, calcium intake. Then comes the medications. Medications में जो सबसे common है वो non-steroidal inflammatory है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होती है, phenamic acid है, that are commonly used or given by the chemist without prescription. उसके बाद आ जाती है स्पेसिफिक डिजीज, ट्रीट द अंडरलाइन पैथोलॉजी। ठीक है जी। तो जब तक आप अंडरलाइन पैथोलॉजी को ट्रीट ना करें, मरीज जितनी मर्जी देर तक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी खाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर वजाइनल सेप्टम है, हेमाटोमेट्रा है, तो सेप्टम को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फाइब्रोइड है तो इट नीड्स रिमूवल, आइदर स्टेक्टमी द फैमिली इज कंप्लीट, और मायोमेक्टमी द फैमिली इज नॉट कंप्लीट। पॉलिप है, इट नीड्स पॉलीपेक्टमी एंड डीएनसी। अगर पेशेंट को पीआईडी है, इट शुड बी ट्रीटेड बाय प्रॉपर एंटीबायोटिक्स एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर सेंसिटिविटी। एंडोमेट्रियोसिस का भी ट्रीटमेंट होगा, पेशेंट ठीक होगी। एडिनोमाइसिस है तो पेशेंट नीड्स डेफिनेटली ट्रीटमेंट लाइक स्टेम। ये जो है सेकंड स्टेज होंगे, इट शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द कॉज, अंडरलाइन कॉज। और उसके अलावा एडिशनल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, लाइक डीप ब्रीथिंग। अच्छा जी, ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसमें आपको ये भी आ सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी आ सकता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एज जैसा मैंने बताया था, यूजली 60 to 25, secondary is 30 to 45. Onset of pain just prior to menstruation is spasmodic. Pain often progresses through late luteal congestive type pain. Pathophysiology: excess prostaglandins, vasopressin, leukotrienes. Or secondary, it is usually due to the underlying cause. Symptoms: usually self-limiting, last for first 1 to 3 days of the menstruation. Respond to combined oral contraceptive pills and non-steroidal anti-inflammatory. Periods normal or light. ठीक है जी। यूजली भी इसमें भी और जो है OCPs हम अवॉइड करते हैं, और non-steroidal inflammatory is the preferred choice. और साइंस आर अनरिमार्केबल। अब आ जाते हैं सेकेंडरी में, इसकी आप पिक्चर भी ले लें अगर, ताकि आपको जब कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी इसमें। सेकेंडरी तो एज ग्रुप है 30 to 45 है। पेन often progresses to late luteal phase. There is always a specific underlying disorder.
ठीक है जी। सिम्टम एसोसिएटेड विद अदर फीचर्स रिलेटेड टू अंडरलाइंग डिजीज, इसका क्या मतलब है? जाहिर है फाइब्राइड है तो मेनोरेजिया होगा, एडिनोमाइसिस है तो मेनोरेजिया होगा एसोसिएटेड, पीआईडी है तो वजाइनल डिस्चार्ज होगा, एंडोमेट्रियोसिस है सीवियर पेन होगी, इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है, वजाइनल सेप्टम होगा तो पेशेंट को एमेनोरिया के सिम्टम्स होंगे, तो उसके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी होंगे, जस्ट डिस्मेनोरिया नहीं होगा। It is usually resistance to oral contraceptive pills and non-steroidal anti-inflammatory. Periods are often heavy. Dependent on cause, but may include, जिस तरह कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, may include a tendal enlarged, टेंडर भी यूट्रस हो सकती है, एडिनोमाइसिस में होगी, enlarged जो होगी वो फाइब्राइड में होगी, फिक्स इंट्रोवर्टेड यूट्रस विद एडिनेक्सल टेंडरनेस एंड नमनेस, पीआईडी में हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस में हो सकती है। होपफुली आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का डिफरेंस पता चल गया होगा और काफ़ी हद तक क्लियर भी हो चुका होगा, बशर्ते कि आप सुन रही हैं, आपने अपने माइक जो है अपने ऑडियो है उसको ऑफ नहीं किया हुआ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सेकंड जो है हमारा टॉपिक आज का, डेट इज पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और पीएमएस, ठीक है जी। ये भी आपका जो है डिसऑर्डर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके चैप्टर में ये वाला टॉपिक भी है, ठीक है जी। अब ये क्या बोला है? It is the occurrence of cyclical, somatic, psychological, and emotional symptoms that occur in luteal or premenstrual phase of the menstrual cycle and resolve significantly by the time menstrual ceases. ठीक है जी। luteal phase जो है जो second phase of the menstrual cycle है after the LH surge, जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, उससे रिलेटेड अगर किसी खातून को ये सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाए, सोमैटिक साइकोलॉजिकल, क्या होता है? दिल घबरा रहा है, सर में दर्द हो रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, बेचैनी हो रही है। अब ये कहेंगे आपको तो सारी लोग टीचर्स को ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम रहता है, ठीक है। ये जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में तुमको सबको हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है। Occurrence of cyclical, somatic, psychological, and emotional symptoms that occur in luteal phase of the menstrual cycle resolve significantly by the time menstruation ceases. और ये cyclical symptoms हो, किसी को जो है वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या सोमैटिक इमोशनल सिम्टम्स किसी और वजह से भी हो सकते हैं, कोई टेंशन भी हो सकती है, अपनी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर ये साइक्लिकल है, परसिस्ट कर रही हैं, और स्पेशली अगर उसका मेंस्ट्रुअल चार्ट में वो नोट किया जाए और इट इज अकरिंग इन द लुटियल फेज, देन इट विल बी लेबल्ड एज द प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. Conditions manifest with distressing physical, behavioral, and psychological in the absence of underlying organic or psychiatric disorder. अगर ये सारे सिम्टम्स हैं लेकिन साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हो गई है, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है और साइक्लिकल है, देन दे विल बी लेबल्ड एज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. प्रेवलेंस, इट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होते हैं. It is particularly affect women in the third decade of life, third or fourth decade of life में ज़्यादा common है. 5% of the women experience severe symptoms and they need help या they may seek help. इतने severe होते हैं कि normal जो daily activity है वो भी normal जो है वो करनी मुश्किल हो जाती है, and the patient will need proper investigation. ठीक है जी. अब आ जाते हैं किन में common है. जेनेटिक फैक्टर स्पेशली इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये डिफरेंट स्टडीज से उन्होंने कुछ रिस्क फैक्टर्स निकाले हैं. पॉजिटिव कोरिलेशन विद हाई पैरिटी, हिस्ट्री ऑफ एक्लैम्पशिया, हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम ब्लूज, वुमेन विद अल्कोहल अब्यूज एंड वर्किंग आउटसाइड द होम, दीज आर ऑल फैक्टर्स व्हिच प्रीडिस्पोज टू पीएमएस. etiology is uncertain. Different theories हैं, कुछ कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, कुछ कहते हैं दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं की वजह से. तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये फाइनल डायग्नोसिस कॉज नहीं पता. It may represent an accelerated response to the physiological levels of the main hormones of the cycle. Cyclical endogenous progesterone in the luteal phase is the key provoking factors. तो जो studies हैं उसमें कहते हैं कि जो main culprit is progesterone. Progesterone is the cause of premenstrual syndrome. Progesterone has established mood altering and sedative effects. Progesterone से नींद भी ज़्यादा आती है, mood alteration भी करता है. ठीक है जी. इसलिए जब प्रेगनेंसी के initially
पेशेंट जो प्राइमरी ग्रेविडा स्पेशली जो कंसीव जो है प्राइमरी जो कोई भी खातून प्राइमरी ग्रेविडा होती है, इनिशियल 3 मंथ्स में स्लीप का भी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, स्लीप भी इसकी ज़्यादा हो जाती है और मूड और डिप्रेशन भी कुछ ज़्यादा हो जाती है। ये सारी जो आता है दीज आर ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। सम वुमेन आर मोर सेंसिटिव टू एंडोजेनस प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है जी, तो बेसिकली द कल्प्रिट इज प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि सिक्रीशन ही मेन जो है उसका जो पीक आ रही है वो उससे कहते हैं आ रही है ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऊपर आप देख सकते हैं ओवेरियन साइकिल है जिसमें फॉलिकल बन रहा है जो कल भी डिस्कस किया था। उसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल भी आप देख सकते हैं कि एफएसएच इज यूजुअली सीन इन द फॉलिकुलर फेज एंड एलएच सर्ज एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, और उसके बाद उसका लेवल फॉल कर देता है। ईस्ट्रोजन का जो है लेवल ज़्यादा उसमें भी है, फर्स्ट फेज में भी है, सेकंड में भी है, लेकिन मेनली जो है उसका पीक आती है वो फॉलिकुलर फेज में। प्रोजेस्टेरॉन की जो पीक है वो बेसिकली ल्यूटियल फेज में, एंडोमेट्रियम का तो आपको कल डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। उसके अलावा जो दो थ्योरीज हैं, एक तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स का। ईस्ट्रोजन हैज इफेक्ट ऑन डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन. Serotoninemic systems have a key role in regulating sleep, mood, appetite, and cognitive ability. Low serotonin levels may also play a role. Low activity of GABA is also seen as PMS, PMDD, and depression, commonly precipitated by stress and tension. तो stress और tension है तो वो एग्रीगेट करेगा इन सारी जो है अनबैलेंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन कह रहे हैं कि ईस्ट्रोजन इफेक्ट करता है सेरोटोनिन को, और सेरोटोनिन इज द मेन कल्प्रिट, और जो लो सेरोटोनिन का लेवल है दैट प्ले द मेन रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए सिम्टम। उसके अलावा गाबा कमी करते हैं उसका भी। सिम्टम्स क्या होंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स की लंबी लिस्ट किताब में दी हुई होती है, इसको सम अप जो करें तो मूड इरिटेबिलिटी, टीयरफुलनेस, डिप्रेशन, हॉस्टिलिटी, cognitive functions are poor concentration, forgetfulness and confusion. Somatic manifestations include bloating, fluid retention, nostalgia, headaches, appetite and sleep disturbance. Behavioral changes are social withdrawal, inability to cope, काम करने को दिल नहीं चाहेगा, उसे कहते हैं किसी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा होगा। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स तो हैं ही, वेट गेन के, ब्रेस्ट टेंडरनेस के, हेडेक्स के, एपेटाइट के। इसके अलावा ये सारे जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हर वक्त घबराहट होती जाएगी, इस बेजारी आपकी तबीयत में आ जाएगी, ये सारे जो सिम्टम्स हैं दीज आर द सिम्टम्स ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है जी। It is often useful to use a premenstrual symptom questionnaire to assess severity of the symptoms based on the scoring system of 0 to 3 for each symptoms depending on severity. Quality of life questionnaire assess degree to which woman life is disrupted. ठीक है जी। यूरोप या जो है डेवलप कंट्रीज उन्होंने क्वेश्चनियर बनाई हुई जिसमें ये सारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली स्कोर देते हैं और फिर वो अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है और हमारी खवातीन जो है काफ़ी हद तक हीट भी है, अगर उनकी मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उनको हो भी रहा है तो वो यूजली इसको गुजार लेती हैं, इसके लिए किसी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ज़्यादा जाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेसेस और सारी जो है इस तरह की चीज़ें उनके साथ पहले ही यूज होती हैं, तो वो उसको इतना नोटिफाई नहीं करती कि ये जी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ही मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर अननोटिस्ड ही उनका गुजर जाता है, मतलब वो बर्दाश्त कर लेती हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर इसका जो है स्कोरिंग सिस्टम यूज़ होता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्कोरिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरा चार्ट है, ये मरीज को दे दिया जाता है, उसके बाद वो इसको अकॉर्डिंगली टू सिम्टम्स जो है वो उसको टिक करती जाएगी। तो फर्स्ट डे ऑफ साइकिल जो है, अब डिप्रेशन, इसमें सिम्टम्स क्या है? डिप्रेशन, सैडनेस, टेंशन और इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और नर्वसनेस, एंगर, एग्रेशन और शॉर्ट टेम्परनेस, क्राइंग स्पेल, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स और फीट, ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स थे। अब ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस और फुलनेस, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स, लो बैक एक, हेडेक, फटीग, चेंज इन एपेटाइट, फूड क्रेविंग, इंसोम्निया, अदर्स, यानी कि एक लंबी लिस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई सिम्टम नहीं है तो स्कोर इज 1, तो माइल्ड सिम्टम्स हैं तो 2, मॉडरेट हैं तो 3 और स्वीयर हैं तो 4। ठीक है जी। तो इस तरह अकॉर्डिंगली पेशेंट अपना चार्ट एक महीने के लिए मेंटेन करेगी और फिर वो आपके अपनी जो कंसल्ट फिजिशियन है, कंसल्टेंट, उसके पास लेके आएगी और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाएगा।
ठीक है जी, ये पिक्चर है जो कि इसको अच्छा प्रेजेंट कर रही है नेट से लेके मैंने ऑफ द यानी कि इस तरह की कंडीशन जो है ये जो हो जाती है ड्यूरिंग पीएमएस। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये पैटर्न आपको दिखा रहा है द टाइमिंग एंड सिवियरिटी ऑफ पीएमएस सिम्टम्स वेरीज अक्रॉस वुमेन एंड थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल बट टेंड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ दीस सिम्टम्स। अब आप ये चार पैटर्न देख रहे हैं। कुछ लोगों में जो फर्स्ट ग्राफ आ रहा है उसमें जो मेंस्ट्रुएशन है और उसके बाद जो लूटियल फेज है उसमें 21 से ऑनवर्ड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और उसकी सिवियरिटी आप देख सकते हैं नन, पहले 21 डेज तक कोई सिम्टम नहीं है, फिर वो एकदम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा है उसमें आफ्टर द मंथ 14 डेज पे सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, मॉडरेट तक जाते हैं और उसके बाद सीवियर बिकम एट द एंड ऑफ द 28 डेज। उसके बाद जो अगला पैटर्न है उसमें क्या है, 14 डेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही एलएच सर्ज होती है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होती है, दे हैव बिकम सीवियर एंड दे परसिस्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स, ठीक है जी। इसी तरह इस अगले में भी यही पीक आ रही है, इसमें बहुत अर्ली दिखा रहे हैं, ठीक है जी। 7th डे पे ही सिम्टम्स स्टार्ट हो गए आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। जाहिर ऑब्वियसली ये जो पेशेंट से बर्दाश्त करना मुश्किल है और ये जो कैटेगरी पेशेंट की है शी नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये 7 से 28 डेज तक 3 वीक्स पे ड्यूरेशन पे ये सिम्टम प्रोसेस करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट लास्ट है उसमें ड्यूरिंग कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज और उसके बाद वो सबसाइड करते हैं, फिर 14 से लेकर 28 डेज तक 2 वीक्स तक कॉन्स्टेंटली सीवियर सिम्टम्स। ये भी पेशेंट जो है ये ट्रीटमेंट इसकी रिक्वायर्ड होगी। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन उसमें अब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़ाहिर बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त होंगे। लेकिन जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन है इनमें ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, ट्रीटमेंट इज ऑलवेज नीडेड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं डायग्नोज कैसे करना है, हमने काफ़ी डिस्कस भी कर लिए। इट नीड्स गुड हिस्ट्री एंड सिम्टम चार्टिंग, ठीक है जी। मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस क्वेश्चनियर consisting of 8 related system groups are filled to diagnose. Cycle charts clearly differentiate cyclical symptom from those with continuous symptoms. Continuous symptoms ये सारे जो हैं ये symptoms किसमें हो सकते हैं, endogenous डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकते हैं, एनीमिया भी हो सकते हैं, अपने फैमिली स्टेटस की वजह से भी सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इनसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। डायग्नोसिस ऑलवेज क्लिनिकल एंड इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज, ठीक है, एंड नो सिंगल टेस्ट इज अवेलेबल। ऑब्वियसली कोई टेस्ट तो है नहीं जिसको डायग्नोज कर सके। हम मरीज से सवाल जवाब करके पूछ सकते हैं और बाकी जो दूसरी कॉजेज हैं इन सारे साइकोलॉजिकल और सोमैटिक सिम्टम्स को हम नोट करेंगे। In ambiguous cases, a therapeutic 3 month trial of GNR and analogs is used as suppress operation. If remains symptomatic, not be. ठीक है जी। अगर किसी में डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रहा, ना मेडिसिन वालों का कोई डायग्नोसिस बन रहा है, ना साइकेट्रिक वालों का बन रहा है, वो कह रहे हैं पीएमएस है, तो आप उसका क्या करें, आप 3 महीने के लिए उसे जीएनआर एनालॉग्स को डाल दें। वो क्या करेंगे, डाउन रेगुलेट द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी की डाउन रेगुलेशन होगी, ओवरीज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं करेंगी। और अगर उस साइकिल में ईस्ट्रोजन इन 3 महीनों में पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स नहीं होते साइक्लिकल, तो इसका मतलब है कि इट इज पीएमएस। और अगर वो सिम्टम्स डाउन रेगुलेशन और जीएनआर जो है आरएच एनालॉग्स लेने के बाद भी रहते हैं, तो मोस्ट लाइकली इट इज ड्यू टू, अगर रहते हैं तो पीएमएस नहीं है, और अगर वो ठीक हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज पीएमएस। तो ये ड्रग ट्रायल से भी आप थेरेप्यूटिक 3 मंथ्स की ट्रायल से भी आप डायग्नोज कर सकते हैं अगर कोई कंफर्म डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हो। जी ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है डीडी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो ये सारी कॉजेज आपने पहले रूल आउट करनी है, फिर आपने पीएमएस लेबल करना है। अंडरलाइंग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, इम्पेंडिंग मीनोपॉज, मीनोपॉज से भी पहले ये सारी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिनकी टाइप ए पर्सनैलिटीज होती हैं, एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं, एंजाइटी प्रोन होते हैं, उनमें भी सिम्टम्स होते हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, थायराइड अपसेट है उसमें भी होंगे, अल्कोहल अब्यूज में भी होंगे, मिग्रेन भी होगी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल जो है ये चीज़ें जिसमें ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं दैट आर सिमिलर टू द प्री पीएमएस सिम्टम्स, ठीक है जी। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसकी एक लंबी चौड़ी मैनेजमेंट है, क्योंकि कोई डेफिनेट मैनेजमेंट नहीं, हिट एंड ट्रायल का मेथड है, कोई कुछ देगा कोई कुछ देगा, ठीक है।
The list of therapies are extensive as unknown etiology. Start with basic approaches. ठीक है जी, कोई definitive treatment नहीं है, तो you should start with the basic approaches. Explore situation which may cause undue stress and tension, and counseling is very useful. ठीक है जी, आपने पहले तो वहीं से बाकी उसके सारी जो है सोशल उसके फैक्टर्स हैं उनको रूल आउट करें। उसका अगर वर्क प्लेस पे स्ट्रेस ज़्यादा है, घर पे स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सारे सिम्टम उसकी वजह से हुए हैं, उसको भी आपने एड्रेस करना है। और हो सकता है कि उन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने से वो सिम्टम सेटल हो जाए। ठीक है जी, और काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मरीज को प्रॉपर टाइम दिया जाए। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज में रिड्यूस स्ट्रेस ड्यू टू एनहांसिंग एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये जो सिम्टम्स है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। फिर ऐसे मरीजों को आपने कहना है कि कॉफ़ी और जो टी है उसको कम करें, क्योंकि कैफीन विड्रॉल जो है ये भी इस चीज़ को कम करता है सिम्टम्स, जो डिफरेंट स्टडीज। उसके बाद हेल्दी लाइफ स्टाइल्स लाइक प्रॉपर इनटेक ऑफ द वेजिटेबल्स, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि जनरल मैनेजमेंट में आ जाती है। उसके बाद सर्काडियन मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग स्लीप डिप्रेशन फॉर वन नाइट इन ल्यूटियल फेज, इट इन्फ्लुएंस मेलाटोनिन। उसके बाद है जी ऑयल ऑफ इवनिंग और प्राइमरोज, जो इवनिंग ऑयल होता है ये भी बड़ा इसमें यूजफुल है, जो कि हर्बल रेमेडी है। विटामिन B6 भी कुछ ट्रायल्स में है, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी, जिंक सप्लीमेंट भी। तो ये सारे जो है कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई हर कंट्री में हर जगह वेरी करता है। बेसिकली जो आपने लेना है वो वही मिनरल्स, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, इवनिंग प्राइमर ऑयल। ठीक है, जो उसके स्लीपिंग पैटर्न है उसको ऑल्टर किया जाए, वो भी जो मेलाटोनिन का क्योंकि भी कहते हैं रोल है, वो भी ये PMS जो होता है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, मैनेजमेंट उसके बाद आ जाती है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। अगर ये सारी जो है जनरल में ये तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मरीज कह लीजिए मेरी जिंदगी खराब हुई है, आप लिए कुछ करें, घर वालों से लड़ती है और सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई ड्रग देनी पड़ेगी। तो नंबर 1 जो लाइन है वो है हार्मोनल मेडिकेशन। वो क्यों? क्योंकि वो अगर हम कहते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन कॉज है, तो फिर हम प्रोजेस्टेरॉन को बॉडी से प्रोड्यूस करना बंद करें, और वो साइक्लिकल प्रोजेस्टेरॉन, तो हम उसकी ओवुलेशन सप्रेशन करेंगे। वो हम किससे कर सकते हैं? OCPs दे सकते हैं और डेपो इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, डेनाजोल दे सकते हैं और ईस्ट्रोजन इम्प्लांट और हाई डोज पैच। ठीक है जी, ये जो है ये इनिशियल मेडिकेशन है और बाइनोरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब फर्क क्या है? अब आपको ये भी सवाल आ सकता है कि पिल्स में भी तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उसमें वो एक कंटिन्यूस लेवल प्रोजेस्टेरॉन का मेंटेन रहता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पीक आती है ल्यूटिल फेज में, वो उसको अवॉइड कर दिया जाता है और ओव्यूलेशन सप्रेस होता है। उसी तरह ये जो इम्प्लांट्स हैं या ईस्ट्रोजन इम्प्लांट्स हैं या पैचेज हैं, उनमें भी यही है कि कंटिन्यूस डेली का ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा है। उसके बाद GnRH एनालॉग, GnRH एनालॉग जो है द लास्ट ड्रग है, दी क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। एक तो ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, मंथली इंजेक्शन भी आज से 4-5 साल पहले भी 10,000 का था, अब तो मोस्ट लाइकली 15 से 20,000 तक हो गया होगा। फिर ये डायरेक्ट डाउन रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी करेगा, तो उसके बाद जो बॉडी में सबसे जो इसका रिस्क फैक्टर है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, उसके बाद जेनिटल ट्रैक्ट एट्रोफी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो बोन मिनरल डेंसिटी को कम होगा, इसलिए हम इसको लंबे अरसे तक नहीं दे सकते। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स के लिए देंगे। ठीक है जी, फ्रॉम द ट्रायल बेसिस। उसके बाद आ जाती है नॉन हार्मोनल मेडिकेशन। ठीक है जी, डायूरेटिक्स इफ ट्रू वाटर रिटेंशन, अगर वाकई बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है और एब्डोमिनल स्वेलिंग है, तो डायूरेटिक्स कैन आल्सो बी गिवन अगर किसी को फिजिकल सिम्टम्स आते हैं एज कम्पेयर टू साइकोलॉजिकल सिम्टम। उसके बाद सेरोटोनिन जो है, selective serotonin reuptake inhibitors, they are also very beneficial, they can be given for the treatment of PMS। फ्लॉक्सिटिन जो है, उसके बाद नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी टू रिलीफ, अगर तो पेन ज़्यादा है, लेकिन इसमें पेन इतनी नहीं होती, इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस, डिप्रेशन, ये सारा कुछ। तो सेरोटोनिन जो है फ्लॉक्सिटिन, ये काफ़ी इसमें है। इन एक्सट्रीम केसेस बायोलॉजिकल इफेक्ट proven benefit from ovarian suppression must be confirmed first। तो सबसे जो लास्ट ट्रीटमेंट है जो सर्जिकल है वो है कि आप यूट्रस की ओवरी ही निकालते हैं। ठीक है,
लेकिन इससे पहले आपने GnRH एनालॉग्स का ट्रायल देना है 3 मंथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि GnRH जो है वो ओवरीज को डाउन रेगुलेट करेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जाहिर है आप ये ना हो कि आप ओवरीज को निकाल दें लेकिन PMS खत्म ही ना हो, उसके सिम्टम जो है वो वजह हो। तो इतनी मेजर सर्जरी से पहले पहले आप इसको GnRH का ट्रायल दें 3 मंथ्स के लिए, और अगर वो उसको रिस्पॉन्ड करती है डाउन रेगुलेशन करने के बाद PMS के सिम्टम्स ऑल टुगेदर खत्म हो जाते हैं, देन यू विल एडवाइस ovarian bilateral preference. Assessment of any form of therapy is particularly difficult because of the 70 to 80% placebo response. ठीक है जी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो है चार्ट आप देख सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कंटिन्यूस कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, low dose selective serotonin reuptake inhibitors and cognitive behavioral therapy। ठीक, कंटिन्यूस क्यों देंगे? कंटिन्यूस इसलिए देंगे कि हमें मेंस्ट्रुएशन वाला जो पीरियड है उसको अवॉइड करना है। जिस तरह हम उसमें एंडोमेट्रियोसिस में कंटिन्यूस पिल्स लेते हैं, इसी तरह इसमें भी हम कंटिन्यूस पिल्स देंगे ताकि एक ही लेवल मेंटेन रहे और उसमें जो है ऊंच नीच ना आए और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक सेम रहे। अगर ये फेल हो जाता है देन वी जंप टू सेकंड लाइन। उसमें क्या है? ईस्ट्रोडाइल पैचेज विद प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टोजन, ईस्ट्रोजन का पैच देंगे विद ओरल प्रोजेस्टेरोन और लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें ये है कि ईस्ट्रोजन तो इन द फॉर्म ऑफ पैचेस देंगे पास इफेक्ट फ्रॉम द लिवर, लिवर को बाईपास करने के लिए, क्योंकि ये भी आपको पता है कि जो हार्मोन्स है लिवर मेटाबोलाइज होते हैं, लिवर जो है डैमेज भी होता है इससे। ठीक है जी, इन हार्मोन से। तो इसलिए हम उसको जो प्रोजेस्टेरोन है, विंग प्रोजेस्टेरोन विंग इज सप्लाइड बाय द इंट्रायूट्राइन LNG और ईस्ट्रोडाइल पैचेस देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जो है सेरोटोनिन जो रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं इनका डोज हाई करते हैं। तीसरी बात फिर आ जाएगी थर्ड लाइन। थर्ड लाइन जो आ जाएगी वो है GnR एनालॉग्स। मैंने पहले बताया था एक्सपेंसिव ड्रग है, देनी मुश्किल है, साइड इफेक्ट ज़्यादा है। इसमें आप थर्ड लाइन में ये देंगे और साथ हम एडवेक थेरेपी करेंगे ताकि जो उसके अनप्रूव्ड इफेक्ट हैं बोन के ऊपर उसको हम कम्बाट कर सकें। तो दीज आर द कंटिन्यूस कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और टिपोलॉन। ठीक है जी। टिपोलॉन जो है वो जेंटल ट्रॉफी को प्रिवेंट करेगा, तो वो फिर हम इसमें थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो GnRH एनालॉग्स है। सिंपल से स्टार्ट करेंगे और आगे प्रोग्रेसिव जो है वो एडवांस मेडिकेशन पे जाएंगे, और लास्ट जो है वो क्या करेंगे? TH कर दें, बायलेटरल ओफ्रेक्टमी कर दें, और उसके बाद उसे कंटिन्यूस HRT को डाल दें for the prevention of the osteoporosis, genital atrophy and for the prevention of the cardiovascular disease। ठीक है जी। तो ये तो हो गया सारा उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अच्छा, कुछ उसके बाद ये पिक्चर हम देख सकते हैं। PMS diet, adjusting your diet can help to alleviate PMS symptoms, use the table below slide। ठीक है जी। तो आपने मरीज को क्या एडवाइस करना है? एल्कोहल स्टॉप करानी है, कैफीन स्टॉप करानी है, निकोटीन बंद करनी है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बंद करवानी है। देना क्या है? कैल्शियम सप्लीमेंट विद विटामिन D। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुड बी अवॉइड एंड डेली विटामिन multivitamin and with calcium। ठीक है जी। कैल्शियम विटामिन इज मस्ट विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म कर। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं कुछ पावरफुल हर्ब्स भी हैं दैट आर वेरी यूजफुल। ठीक है जी। हमारे कुछ ये जो पहली दो है क्रैम बार और शैमोमाइल। इस शैमोमाइल का मुझे नहीं पता, ये मुझे लगता है तो ये अफ्रीका या ब्राज़ील साइड पे अवेलेबल है, लेकिन सिनेमन है वो तो हमारे यहाँ जो है वो दालचीनी इसको कहते हैं, वो तो बड़ी हमारे पास कॉमन है। डायबिटीज़ में बड़ा इसका रोल है और इसमें भी इसका बड़ा रोल है टू एलिवेट द सिम्टम्स ऑफ पेन। ये आप एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये चराई हमने ठीक है जी। इस तरह का हॉस्टाइल बिहेवियर होता है खातून का ड्यूरिंग पीरियड्स। ठीक है जी। दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। अब हम तीसरा टॉपिक नहीं डिस्कस करें तो हमारा टाइम ऑलमोस्ट फिनिश। ठीक है। ओके, गुड, अल्लाह हाफिज़।